Good morning, class 3 students. Welcome back to online class. Today we will study moral value. So, open your moral value book, page number 34 and chapter number 6, The Crow and the Pitcher. Okay? So, through this story we will um, learn that if we have determination and continuous effort, we can get anything we want. Means we must try and try till we succeed. Okay. So I hope you all know this story. I hope you all read this story in previous class. Like a thirsty crow, right? So read this story once again. Okay. स्टूडेंट्स आज पेज नंबर 34 से चैप्टर नंबर 6 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द क्रो एंड द पिचर। ये चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर से हम लोग को सीखने को मिलेगा कि डिटर्मिनेशन, अगर हमारे पास डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प है, हम किसी चीज को संकल्प करके रखे हैं, मन में ठान लिए हैं और कंटिन्यूअस इफर्ट लगाते हैं, मतलब कंटिन्यू मेहनत करते हैं उस पर, तो वी कैन गेट एनीथिंग वी वांट। हमको वो सब कुछ मिल सकता है जो हम चाहते हैं। और साथ मतलब कि हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए तब तक जब तक सक्सीड ना हो। मतलब जब तक हम उस चीज को पाना जाए। जैसे कि आप लोग फर्स्ट आना चाहते होंगे। तो फर्स्ट आने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको कंटिन्यूअस एफर्ट करते रहना होगा, कंटिन्यू मेहनत करती रहनी होगी, क्वेश्चन आंसर याद करते रहने होंगे, तब आप पा सकते हैं। तो इस चैप्टर से हम लोग यही सीखने जा रहे हैं। तो कैसे होता है ये, चलिए इसको देखते हैं। सो आई एम रीडिंग दिस स्टोरी एंड व्हाट यू विल डू, यू विल रिपीट आफ्टर मी। मैं इस स्टोरी को पढ़ने जा रहा हूं और आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द क्रो एंड द पिचर। रिपीट आफ्टर मी, मेरे पीछे भी बोलिए। द क्रो एंड द पिचर। Once upon a time, there lived a crow named Kalia. He lived in a vast jungle. The jungle was Kalia's home. He ate the juicy fruits from the trees and drank water from the river. During summers, the jungle dried up. There was no water in the river or the wells. All the birds and animals were dying of thirst and hunger. Kalia thought, there are no fruits in the trees, and the river has dried up. I must leave the jungle. Next page पे जाएंगे. Turn to the next page. So Kalia flew to faraway places in search of food and water. However, he could not find food or water anywhere. The summer heat had dried up everything. He was dying of thirst. Finally, Kalia came across a pitcher. He was excited to find some water in it.
Ah, finally, found some water, exclaimed Kalia. When he put his beak in the water, he could not drink it. The water was at the bottom of the pitcher, and Kalia's beak could not reach it. Kalia kept gazing at the water in the pitcher and thought, how can I drink the water in the pitcher since my beak cannot reach the bottom of the pitcher? The water needs to rise. There must be a way. I must not give up. Suddenly, he came upon an idea. He saw some pebbles on the ground. He picked up a pebble with his beak and dropped it in the pitcher. The water level rose a little. However, he still could not, turn to the next page, reach the water with his beak. So he brought a few more pebbles one by one. He started dropping them into the pitcher. As he dropped the pebbles, the water level rose slowly. It finally reached a level where Kalia could not reach it with his beak. Kalia drank the water from the pitcher. Therefore, with his determined and clever mind, Kalia was able to quench his thirst. Okay, now, students, I am reading this story once again and explaining this story in Hindi also. Okay, so listen carefully. Okay. सो स्टूडेंट्स हम ये स्टोरी हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं मतलब इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, सॉरी, इसको पढ़ने जा रहे हैं और साथ ही साथ हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. ओके, सो आप लोग ध्यान देके सुनिएगा. ओके. द क्रो एंड द पिचर. एक कौवा, मतलब कौवा और घड़ा, ये कहानी का नाम है. वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड ए क्रो. एक कौवा रहता था कहीं पर, उसका नाम था कालिया. कालिया इज लुक लाइक विलन नेम, राइट? अब तेरा क्या होगा कालिया, लाइक दैट ना. सो वट एवर, हमें किसी के नाम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, राइट? सो कहीं पर एक कौवा रहता था, उसका नाम था कालिया. ही लिव्ड इन ए वास्ट जंगल. और वो कोई बहुत बड़े से जंगल में रहता था. द जंगल वॉज कालियास होम. और जंगल जो था वो कालिया का घर था. ही एट द जूसी फ्रूट्स. और वो जूसी फ्रूट खाता था, मतलब रसीले फल खाता था, फ्रॉम द ट्रीज, एंड ड्रंक वाटर फ्रॉम द रिवर. और रसीले फल वो पेड़ों से खाता था और पानी नदी से पी लेता था. एक समय ड्यूरिंग समर, समर के टाइम में, मतलब गर्मियों के समय में, एक समय की बात है, द जंगल ड्राइड अप. और जंगल जो था वो सूख गया.
एक गर्मी में। देयर वॉज नो वाटर इन द रिवर्स, और वहां पानी ही नहीं था रिवर में, और द वेल्स, और कुओं में भी पानी नहीं था। ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स वेयर डाइंग ऑफ थ्रस्ट, और सारे चिड़िया और जानवर जो थे वो प्यास से एंड हंगर, और भूख से मरने लग गए। कालिया थॉट देयर आर नो फ्रूट्स इन द ट्रीज एंड द रिवर हैज ड्राइड अप, और उसने सोचा कि यहाँ कोई फल ही नहीं है पेड़ों में, और सारी नदियां सूख चुकी हैं। आई मस्ट लीव द जंगल, मुझे ये जंगल छोड़ देना चाहिए। जब यहाँ फल ही नहीं है पेड़ों में, और पानी भी नहीं है नदियों में, तो हम यहाँ रह के क्या करेंगे? सो मुझे ये जंगल छोड़ देना चाहिए। So Kalia flew to far away places in search of food and water. और इसीलिए कालिया जो था वो उड़ गया दूर कहीं जगहों पर, और ताकि वहां पे वो खाना और पानी खोज सके। However, he could not find food and water anywhere. और देखिए वो कहीं भी खाना और पानी उसको नहीं मिला। लेकिन उसको खाना पानी बहुत खोजने पर भी उसको खाना और पानी कहीं नहीं मिला। इन समर हीट हैड ड्राइड अप एवरीथिंग, ही वॉज डाइंग ऑफ थ्रस्ट। और गर्मी का जो ये था मौसम था, तो गर्मी के मौसम में जो हीट थी, जो गर्मी थी, उसने क्या किया था? सभी को सुखा दिया था, सभी चीज को सुखा दिया था। और वो कौवा भी, वो कालिया भी प्यास से मरने लगा, मीन्स कि अब उसकी हालत खराब हो गई। फाइनली कालिया केम अक्रॉस ए पिचर। उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, तो फिर वो ऐसे खोज रहा था, और फाइनली उसे एक पिचर मिला। पिचर मतलब घड़ा। उसे एक घड़ा मिला, एंड ही वॉज एक्साइटेड, और वो बहुत ही एक्साइट हो गया। बहुत ही एक्साइटेड हो गया टू फाइंड वाटर, सम वाटर इन इट। तो उसको वहां पे उस घड़े में पानी मिल गया था। और पानी को देख करके वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया, खुश हो गया, या फिर उत्तेजित हो गया, मीन्स कि वाह, फाइनली आई फाउंड वाटर। और वो कहता आखिरकार मुझे ये पानी मिल ही गया। एक्सक्लेम्ड कालिया, कालिया ने खुशी के साथ में ये बात बोली। when he put his beak in the water, जब उसने अपनी चोंच पानी में डुबानी चाहिए, मतलब उस पिचर में डुबानी चाहिए, उस घड़े में डुबानी चाहिए। he put his beak in the water, he could not drink it. उसने उस घड़े में तो डुबाना तो चाहा पीने के लिए, लेकिन उस पानी को वो पी नहीं पाया। बिकॉज वहां पे क्या हुआ? द वाटर वॉज एट द बॉटम, और पानी जो था वो बॉटम पे था, पूरे तले पे था, नीचे पे था, बहुत नीचे था। ऑफ द पिचर, उस घड़े के सबसे नीचे पोर्शन पे था, मतलब थोड़ा सा ही पानी था। एंड कालियाज बीक कुड नॉट रीच, और कालिया की जो चोंच थी वो उस पानी तक पहुंच नहीं पा रही थी। कालिया केप्ट गेजिंग एट द वाटर इन द पिचर एंड थॉट, और कालिया उस पानी को देखता रहा, टकटकी लगा के देखता रहा, और सोचता है, हाउ कैन आई ड्रिंक द वाटर इन द पिचर, मैं कैसे इस घड़े से पानी पी सकता हूँ? मीन्स कैसे, कोई तरीका तो होगा, कुछ तो होगा। सिंस माई बीक कैन नॉट रीच द बॉटम ऑफ द पिचर, द वाटर नीड्स टू राइज। मैं कैसे इस घड़े से पानी पी सकता हूँ? मेरा चोंच जो है वो पानी तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, एकदम बॉटम तक नहीं पहुंच पा रहा है, तले तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो सोचता है कि क्या ऐसा होता, या ऐसा होता है कि पानी ही ऊपर आ जाता। देयर मस्ट बी ए वे, लगता है, वो बोलता है कि कोई तो रास्ता होना चाहिए। आई मस्ट नॉट गिव अप, मुझे इस चीज को छोड़ नहीं देना चाहिए, मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। लाइक दैट सडनली ही केम अपॉन एन आइडिया, और अचानक उसको एक आइडिया आया।
He saw some pebbles on the ground. और उसको आइडिया क्या आया, उसने देखा कुछ कंकड़ रखे हुए हैं, पत्थर फेंके हुए हैं जमीन पे, मतलब जमीन पे कुछ कंकड़ पड़े हुए हैं. He picked up a pebble, और उसने एक कंकड़ उठाया with his beak and dropped it in the pitcher. और अपनी चोंच से उसने एक कंकड़ उठाया और उसे पिचर में डाल दिया, घड़े में डाल दिया. The water level rose a little, और पानी का स्तर थोड़ा सा बढ़ गया. However, he still could reach the water with his beak. और वो बड़ी, मतलब इससे भी एक पत्थर गिराने से पानी तो ऊपर उतना नहीं आएगा. तो उसकी चोंच अभी भी पानी तक नहीं पहुंच पाई. So he brought a few more pebbles, और फिर उसने कुछ और pebbles लिए और उसको एक एक करके गिराने लग गया. Pebbles, one by one he started dropping them into the pitcher, और एक एक करके वो पिचर में गिराने लग गया. As he dropped the pebbles, और जब उसने कंकड़ को गिराना शुरू किया, the water level rose slowly, और पानी का जो स्तर था वो धीरे धीरे ऊपर आने लगा. It finally reached a level, और फाइनली वो उस लेवल तक पहुंच गया where कालिया could reach it with his beak. उस लेवल तक पहुंच गया जहां पर कालिया कालिया अपनी चोंच से उस पानी तक पहुंच सकता था. कालिया drank the water from the pitcher, और कालिया ने उस पिचर में से पानी पी लिया, उस घड़े में से पानी पी लिया. Therefore, with his determined and clever mind, Kalia was able to quench his thirst. इसीलिए या फिर कहेंगे कि अपने डिटरमाइंड, दृढ़ संकल्प से और अपने तेज दिमाग से, बुद्धिमता से कालिया जो था अपनी प्यास को बुझा पाया. क्विंच हिज थ्रस्ट, और अपने दिमाग से, अपनी बुद्धिमता से उसने क्या किया, वो पानी से, उस घड़े से पानी पी लिया और अपनी प्यास बुझा ली. ओके, सो वी मस्ट ट्राई टिल वी सक्सीड. और इसी तरीके से हमें भी ट्राई करते रहना चाहिए, तब तक ट्राई करना चाहिए जब तक हम सक्सीड ना हो जाएं. और जैसे कि कालिया डिड नॉट गिव अप व्हेन हिज बीक कुड नॉट रीच द वाटर. जैसे कि कालिया गिव अप नहीं किया, उसने छोड़ नहीं दिया कि नहीं नहीं अब नहीं पी सकते, छोड़ो कहीं और खोजते हैं, लाइक दैट. उसने गिव अप नहीं किया, बल्कि उसने जब उसकी चोंच उस पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी, फिर भी उसने गिव अप नहीं किया, बल्कि ही कीप्ड ऑन ट्राइंग टिल ही सक्सीडेड. और वो तब तक कोशिश करता रहा जब तक कि वो सक्सीड ना हो गया. उसने बहुत सारे पत्थर डाले होंगे, 1 पत्थर, 2 पत्थर, 100 पत्थर, उससे भी ज्यादा डाले होंगे, तब जाके पानी ऊपर आया होगा. तो ऑलवेज रिमेंबर द डिटर्मिनेशन एंड कंटिन्यूअस एफर्ट. अगर दृढ़ संकल्प हो और कंटिन्यूअस एफर्ट हो, विल ऑलवेज मेक यू ए विनर. अगर डिटर्मिनेशन है और दृढ़ संकल्प है और कंटिन्यूअस एफर्ट है, मतलब कंटिन्यू उस पर मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक विनर बन सकते हैं. ओके, सो हमेशा आप लोग गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है ना. एकदम गिव अप नहीं करना है, किसी काम को करने के लिए एकदम कोशिश करनी है, हर एक तरीके से इस्तेमाल करना है और फिर उसको पूरा करना है. राइट, ओके. नाउ स्टूडेंट्स, आई होप यू लव दिस स्टोरी. मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. राइट, सो लेट्स सी, let's talk and let's write questions. Okay, and question number 3 and question number 5 is your homework. So what you will do, you will write it in your book. Just click it, just tick the right answer and click a photo and send it to my WhatsApp number. So क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज योर होमवर्क. ये 3 और 5 आपके होमवर्क हैं और आपको क्या करना है, इसकी फोटो खींच करके मुझे भेजनी है. ओके, सो नाउ लेट्स सी सम वर्ड मीनिंग. प्रिजर्वेंस, लगन या निरंतर प्रयास. हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत. क्लेवर माइंड, बुद्धिमता,
कौन बुद्धिमान था? कालिया, राइट। सॉल्यूशन, समाधान या उपाय। पिचर, मटकी या घड़ा। गैजिंग, घूरना या टकटकी लगा के देखना। तो कालिया उस घड़े को टकटकी लगा के देख रहा था, गैजिंग कर रहा था घड़े के पानी को ना, कैसे पी लें कैसे पी लें सोच रहा था। पिबल्स मतलब कंकड़ या पत्थर। रोज, ये वो वाला रोज नहीं है, रोज मीन्स गुलाब, वो वाला रोज नहीं है। रोज उठना, पानी का लेवल उठना। 9 डिटरमाइंड, निर्णय करना। क्विंच, प्यास बुझाना। Okay, so now let's see some questions from Let's Talk. So question number 1, who was Kalia? Where did he live? कालिया कौन था और वो कहाँ रहता था? Kalia was a clever crow. He lived in a vast jungle. कालिया जो था एक चालाक कौवा था और वो जंगल में रहता था। Why were the animals dying? The animals were dying of thirst. Sorry, the spelling is mistaken here. Thirst, thirst, thirst. So इसमें आप स्पेलिंग जो है मिस्टेक है, thirst, थ्रस्ट होता है, तो वो सुधार लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट वाज कालिया डिसाइडेड टू डू? कालिया ने क्या डिसाइड किया कि क्या करना है? Kalia was decided to go some other place because there was no water and food to eat. कालिया ने डिसाइड किया कि किसी दूसरी जगह पे जाएंगे क्योंकि वहां पे कुछ खाने या पीने के लिए नहीं था। Was he able to quench his thirst? क्या उसने अपनी प्यास को बुझा पाया? Yes. With his determined and clever mind, Kalia was able to quench his thirst. हाँ, अपने डिटर्मिनेशन से, अपने दृढ़ संकल्प से और अपनी बुद्धिमता से कालिया ने अपनी प्यास को बुझा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम लेट्स राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड कालिया फ्लाई अवे फ्रॉम द जंगल? कालिया जंगल से क्यों उड़ गया? कालिया फ्लू अवे फ्रॉम द जंगल बिकॉज देयर आर नो फ्रूट इन द ट्रीज एंड द रिवर हैज ड्राइड अप। और कालिया जो था वो क्यों उड़ गया जंगल से? क्योंकि वहां पे ना कुछ खाने के लिए फल थे और ना ही नदियों में पानी था, मीन्स वो भी सूख गया था। Why could कालिया नॉट ड्रिंक फ्रॉम द पिचर? कालिया क्यों उस घड़े से पानी नहीं पी पाया? The answer is Kalia could not drink from the pitcher because the water was at the bottom of the pitcher and his beak could not reach it. कालिया उस घड़े से पानी इसलिए नहीं पी पाया क्योंकि उसकी चोंच, जो घड़ा था, घड़े में जो पानी था वो सबसे नीचे में था, बॉटम पे था और उसकी चोंच उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। Did कालिया गिव अप? क्या कालिया ने छोड़ दिया, गिव अप कर दिया? कालिया did not give up when his beak could not reach the water. कालिया ने गिव अप नहीं किया जब उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी, बट ही कीप ऑन ट्राइंग टिल ही सक्सीडेड। और लेकिन वो कीप ऑन ट्राइंग था, वो कंटिन्यूअस ट्राई कर रहा था, तब तक उसने किया जब तक वो सक्सीड नहीं हो गया। What did कालिया do to drink water from the pitcher? कालिया ने क्या किया पानी पीने के लिए उस घड़े से? कालिया pick up some pebble and drop them one by one into the pitcher. कालिया ने कुछ पीबल्स उठाए और उसको ड्रॉप करने लगा एक एक करके। तो पीबल उठाते था और फिर ड्रॉप करता था, फिर उठाता था फिर ड्रॉप करता था, तो इस तरीके से उसने पिचर को भर दिया। When the water level come up, he quenched his thirst from the pitcher. और जब पानी का लेवल ऊपर उठ गया तब उसने अपनी प्यास बुझा ली उस पिचर से। What is the moral of the story? इस स्टोरी से हमें सीखने को क्या मिला, इसका मोरल क्या था? The moral of the story is, इससे सीखने को हमें मिला कि determination and continuous effort
will always make us a winner. दृढ़ संकल्प और कंटिन्यू एफर्ट करते रहने पर, मतलब लगातार एफर्ट करते रहने पर हम लोग विनर हो सकते हैं. सो इसीलिए हमें ट्राई करते रहना चाहिए. वी मस्ट ट्राई एंड ट्राई टिल वी सक्सीड. हमको तब तक ट्राई करते रहना चाहिए जब तक हम सक्सीड ना हो जाएं. So question number 3 and question number 5 is your homework. Okay. So everyone should send me द आंसर. सभी कोई मुझे आंसर भेजेंगे. मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, आप लोग भेजेंगे. ठीक है. माई व्हाट्सएप नंबर इज 9534850714. ओके. So this is for all today's students. So keep learning, keep studying and be safe. Have a great day. Thank you for watching.